I'm going to react on corporate memes. So I have been following few pages on Instagram and YouTube जहाँ पे बहुत सारे corporate memes आते हैं. कुछ some are funny, some are bit serious, some are sarcastic. So I thought that why not to create a video of my reaction on all those memes and will tell you that क्या ये सच में सही है या नहीं, whether these kind of things happening in the corporate world or not, and my point of view. So this is going to be a bit different video. जो generally मैं करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा different है. It is new for me as well. So I have saved everything over here. So मैं जो भी react करूँगी उसको I'm gonna post in this video. In this video. So yeah, let's just begin. So yeah, it is true. Corporate employees only have 4 moves, which is fed up of meetings. Well, I think that meetings are useful because वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, बट एवरी नाउ एंड देन मीटिंग यानी काम करने का टाइम ही नहीं मिलता समटाइम्स. तो सो या दैट इज़ ट्रू. चाय ब्रेक्स, ओ या हम सुबह ज़्यादा तो वेट करते हैं कि लंच ब्रेक कब होगा. लंच का वेट होता है, लंच ब्रेक होता है तो वेट करते हैं स्नैक ब्रेक कब होगा, चाय ब्रेक कब होगा, और देन वी थिंक दैट कब ऑफिस से घर जाएंगे. सो या आई एम नॉट वेरी मच फैन ऑफ चाय ब्रेक्स, बट या पीपल आर. एंड देन प्लान्ड सिक लीव्स. ओ मैन, कल मुझे उल्टी होने वाली है इसलिए कल मैं नहीं आने वाली. या इट इज़ ट्रू. एंड last is asking for salary hike. Yeah, every now and then people are talking about bonus or salary hike या फिर increment. I mean yeah, increment and salary hike. So yeah, it is true and I agree to that. It is true. So now if you have met this Shreya 4-5 years back, then it is totally true. I would have ran to my best friend to see everything that happened in one-to-one confidential meeting. But as I am now on managerial position, I really don't want my juniors or my colleagues to share it with some other department. So अब मैं वो नहीं करती, but it generally happens. Giving feedback to my manager on the last working day. Oh man, I remember giving feedback to one of my manager on last working day. Well, I always had good relationships with my manager, but there was one time when it wasn't good, and yeah, I genuinely gave the feedback. So not to the manager directly, but to the HR when she asked about the feedback if you are leaving the organization. So yeah, this thing happened. बहुत ज़्यादा criticize नहीं किया था मैंने, sandwich way में criticize किया था. पहले good, then bad, then improvement. Yeah. So I still remember that day. I still remember the message I wrote. I don't think if I can write it over here or not, but yeah. Oh damn, this is so funny. Yeah. तुम भाड़ में जाओ. I literally feel this. जब ऐसा कुछ होता है ना, something in the office happen और बहुत ड्रामा और पॉलिटिक्स होता है, ओ बहन सब बाहर में जाओ, मेरे को किसी से नहीं पड़ी, I'll just sit here and do my work. And मैं बोल नहीं सकती ऐसा, बट मैं मन में ज़रूर बोलती हूँ तुम बाहर में जाओ. It is sad reality, but it is the truth. Performance counts, I guess 50%, just 50%. बाकी का 50% is favoritism, buttering, or how are you presenting yourself. I think it is still justifiable that how you are presenting yourself, but favoritism and buttering takes, I guess, 30% of thing, if not more, if not less. Oh. It happens. Well, I have seen many people, but I think अगर आप ऐसा फील करते हो ना, तो then change the job, change the career. I know it is not always possible, but try कि अगर आपको वो काम नहीं पसंद है तो try finding something that you really like, and जहाँ से पैसा आ रहा है उसको respect करो. And yeah, I just have to say that. Oh yes, मुझे ये हमेशा फील होता है यार, बॉस ऑफिस में बैठे मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ. नाउ बॉस तो लेट आता है, मैं अपने टाइम पे आती हूँ, मैं आई वॉन्ट टू लीव ऑफिस ऑन टाइम, राइट. बट हाँ यार, पता नहीं क्यों गिल्ट सा फील होता है. मैं सुबह टाइम पे आ रही हूँ, सारा काम खत्म कर रही हूँ, फिर मैं टाइम पे जा रही हूँ, स्टिल अगर बॉस बैठा होता है तो एक अलग सा गिल्टी फील होता है, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ. ढोल बाजे, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे. बोलने की इच्छा ज़रूर होती है, यहाँ तक आ जाता है, बट बोल नहीं पाते. बट यार, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे. Yeah, it happens sometimes. मतलब सीनियर के ज़्यादा चेंजेस आते हैं, सीनियर खुश नहीं होता है, बट क्लाइंट समटाइम्स इज़ हैप्पी. सो या कुछ केस में मैं अगर बताऊँ ना, क्लाइंट इतने चिकने होते हैं, दे डोंट इवन वांट टू अप्रूव एनीथिंग, दे वांट रिविजन्स पे रिविजन्स, इटरेशंस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट या सीनियर्स के साथ ज़्यादा ऐसा सीन रहता है. ये एक्चुअली मेरे साथ होता था जब मैंने नया जॉब स्टार्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज.
मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स हम लोग इतना हंसते थे, कैन यू बिलीव? हम लोग लंच ब्रेक में अगर हंस रहे हैं, सो वी वर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, हम लोग लंच ब्रेक के टाइम में मिलते थे एंड हम लोग हंस रहे थे। सो हमारी कंप्लेन HR से जाके कर दी थी दैट ये लोग हंसते हैं एंड वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। लाइक यस, इतना लेवल का टॉक्सिसिटी था। मैं हंस भी नहीं सकती हूँ, मतलब मेरे लंच ब्रेक में मेरे हंसने से लोगों को डिस्टर्ब होता है उनके खाने में। ओह मैन, यू नीड टू सी दिस लिटरली। सो बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोग अगर काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे तो दे जनरली आस्क राइट कि काम कैसा चल रहा है, और एंड आई ऑलवेज आंसर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड द फ्लो। या ओह यस। सो विलन एरा में रहना इज मच बेटर देन बीइंग नाइस एंड हेल्पफुल, because at one point of time you really have to take stance for yourself, you really have to be vocal, you really have to put your points across the table. So yes, don't be too nice and too helpful. Yeah, it again सर हम आपसे झूठ बोलेंगे। So मैं और मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हम लोगों ने सेम टाइम पे छुट्टी ली थी एंड एक ने फुल डे की ली थी बिकॉज शी हैड लीव बैलेंस, बाकी हम दोनों ने हाफ डे की ली थी एंड तीनों ने अलग अलग ही बहाने बनाए थे। बट देन माई नॉट मैनेजर बट मेन बॉस को पता पड़ गया था एंड HR को दैट ये तीनों बंक मार के कहीं गए। वी मेड श्योर कि हम कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, कुछ ना करें, बट अगेन कि तीनों एक साथ छुट्टी पे, समथिंग इज कुकिंग राइट। सो हेल यस। सो आई रियली वांट टू ड्रेस अप वेल, बाल अच्छे से बना के एंड यू नो आई वांट टू लुक प्रेजेंटेबल ईच एंड एवरी डे, बट द वे आई गो टू ऑफिस इज जस्ट मेरा एक स्टैंडर्ड बन होता है एंड मैं ऐसे ऑफिस चली जाती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं कपड़े अच्छे पहनूँ, देन वहाँ जाके यू नो आई कोम माई हेयर एंड आई लुक प्रेजेंटेबल, बट आई रियली वॉन्ट टू बी बेटर, बट आई डोंट नो वो नहीं होता है। सच में कई बार ये फीलिंग आता है कि यार क्या बेवकूफ़ और क्या स्टूपिड और पथेटिक लोग हैं। आई नो पीपल, कुछ लोग मेरे लिए भी बोलते होंगे जैसे मैं कुछ लोगों के लिए सोचती हूँ, बोलती हूँ कि यार इसको इतना सा नहीं आता, इतनी सिली है ये, इसको ये नहीं आता, ठीक है यार, बट या समटाइम्स आई थिंक दैट क्या बेवकूफ़ लोग हैं। या कैमरा ऑन से तो मैं इतनी पक चुकी हूँ। आई मीन आई वर्क इन अ क्लाइंट फेसिंग डोमेन, सो आई हैव टू स्विच ऑन द कैमरा, बट इंटरनल मीटिंग्स में स्विच ऑन करा के क्या मतलब है यार, मुझे नहीं देखना है तुमको। ऑल क्लियर गाइस, ये वाला वीकेंड हमारा वर्किंग रहेगा, तो तेरी गोद भराएगी रसम में। हाँ सर, वीकेंड में अगर कोई काम करने बोल देता है तो वैसे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बट आई रियली फील कि भाई तेरी गोद भराई है क्या, नहीं करना है मेरे को काम। बट या समटाइम्स आई मैनेज, आई रियली थिंक दैट इफ आई एम फेसिंग द क्लाइंट, इफ आई एम ट्राइंग टू गेट द क्लाइंट्स, इन दैट केस इफ इट इज़ माई कंपनी आई वुड हैव वर्कड ऑन द वीकेंड एज वेल। सो इफ आई एम हायरिंग पीपल देन आई रियली वॉन्ट देम टू वर्क ऑन वीकेंड इफ नेसेसरी, ठीक है। सो मन में कभी कभी इच्छा होती है बोलने की, बट इट्स ओके, समटाइम्स इट्स फाइन, बट एवरी नाउ एंड देन इफ दे आर आस्किंग यू टू वर्क ऑन वीकेंड देन इट इज़ अ सीरियस इशू। यस, सब एक दूसरे की बुराई मारते हैं इतनी, बट सामने आते ही ओ हाउ यू, गुड मॉर्निंग। वैसे ये करना पड़ता है, पर्सनल नहीं, प्रोफेशनली आपको लोगों से प्रोफेशनल ही बिहेव करना पड़ता है, बट या एक चमेट मारूँ क्या, समझ नहीं आता इतना। वेल मेरा भी जो मैनेजर है, मेरा जो डायरेक्टर है, वो भी, उसको भी अच्छा होता है कि यार इसको इतनी बार समझाया, इसको समझ नहीं आता है, और जब समझाने के बाद, लिखने के बाद स्टिल मैं इफ़ आई एम मेकिंग मिस्टेक नहीं, इतना गिल्ट फील होता है। बट या मुझे भी ऐसा होता है, कितनी बार कोवर्कर को समझाती हूँ स्टिल वो लोग समझते ही नहीं है, एंड देन आई फील लाइक एक चमेट मारो क्या। yes so हम लोगों को सऊदी जाना था this year and one of my colleague got married in December and he planned his honeymoon in Feb, और हम लोगों को मार्च में सऊदी जाना था। so he was asking कि please approve my leave because this is a planned trip। so I was like मेरे से पूछ के टिकट कराए, we are about to go to Saudi and we have to prepare so many things and you are taking leave at this point of time। but then he requested and I was like ठीक है, okay, you go there, I won't disturb you, but once you are back you have to come to office each and every day till the time we go to Riyadh। so yeah, it hota hai generally, it happens। this is my favorite because at the end of the day it is really is the girl you met at your job, and yes, I met few girls at the job and who are still my good friends, best friends, and yeah,
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप जॉब छोड़ते हो ना, कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ you like such videos, then please comment down so I can create more such videos. And yeah, I'll see you in my next video. Bye.